So yeah, please. Yeah, please. हेलो Hello, yeah. Straight. This couplet in Sanskrit translates, "The lamp is luminous. Its radiance grants victory. Its light imparts dharma, artha, kama and moksha." You saw it in their journey just now, and I'm going to recap a little more of it right here for you. So Roots to Roots began in 2004, and it was mainly with on-ground events to promote art and culture. And I also remember the performances, cold winter evenings in Delhi, the Qawwali, the Shairi, the Shir Shairi, the ghazal programs, there was music, dance, culinary events. And then Didi also filled me in. She told me they did film and theatre festivals, there was even art exhibitions. And then just a few years later you added on and you started student exchange programs. Again there I have a little memory because again there I was roped in by Tina Didi as my sister, my elder sister. And yes, she orders me and I know now. So then I got involved in the student exchange programs where children were taken for a few weeks to a new country to experience a new home, a new life, a new culture. And then a few years later we added Virsa, the online lessons for schools in remote areas. And the part that I find most fascinating about it is you had eminent artists, stalwarts in their fields, in the performing arts, giving lessons to children in schools so far away. Think about it, ये privilege हमें बड़े-बड़े शहरों में बड़े-बड़े schools में भी नहीं मिलता. Where do you have Rakesh Chaurasia ji teaching the Bansuri to children in the biggest school in Mumbai? Doesn't happen, but it was available to the children all the way through Virsa. And then, well, the years have flown, the numbers have grown, and today, apparently, there are more than 22,000 schools and colleges reached through that program. And there are students, 22,000, and students in more than 65 countries. Imagine this, at this moment there could be a little girl in Uzbekistan learning Bharatanatyam. Or in सर एक्सक्यूज मी सर स्प्रेड हो जाओ Okay, after this picture, we will continue with the memento presentation, please. The bell is ringing at 12 o'clock. Can I draw attention to all the photographers, please? This is a request. Please, सब लोग यहाँ पे सामने yes. सर सामने यहाँ पे सर. We need to do the memento presentation now. The bell ringing pictures can be taken later, please. it's okay सर यहाँ पे सर yes. Perfect. The listing certificate.
जगह बनाना पड़ता है सर। The proud to be listed on इसको? NSC badge box. So मैडम, पीछे मिल नहीं रहा, जरा प्लीज। This year have been given those मैं badges. कुर्सी दे देता हूँ दादा को। दादा कुर्सी दूँ क्या आपको इधर बैठने के लिए? कुर्सी दूँ क्या? मेरे को चाहिए। वो देखिए ना उधर मिल नहीं रहा है, दिक्कत हो रही है। हटने के लोग हम भी हट जाएंगे। हाँ रुके कट। It must be a lovely collection in your office. विख्यात अभिनेत्री श्रीमती जूही चावला मैम। जूही जी पे ओके थैंक यू। थैंक यू। श्री एहसान नुरानी, पॉपुलर श्री साहिल वाचाली, चीफ एग्जीक्यूटिव। Thank you. Shri Ehsan Nurani ji, music composer of the Shankar Ehsan Loy Trio film. खड़क ले लो। Work and untiring efforts finally coming to fruition. अरे कान पड़ जाएंगे चलो। 10, 9, 8, सामने 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heartiest congratulations to the management, stakeholders, well-wishers, as it is officially listed. हो गया ना एक ही तरह। You're in my frame. Good picture, man. Yeah, I love you. और पीछे देखो भाई। आ जाओ। Yes, ma. Let us have a resounding of claps to celebrate this moment. Front, please, sir. Front, ma'am. I also request रोले रोले। Ma'am, what do you want to say about today's event? Such a wonderful concept. क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बेहतरीन दिन है। ये पहला NPO है सोशल जो आर्ट एंड कल्चर प्रमोट करता है और आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर होगा। दैट मीन्स दे हैव रेज्ड बिग फंड्स, दे हैव बीन ओवर सब्सक्राइब्ड एंड नाउ दे कैन फंक्शन बिगर, बेटर, ब्रिंग मोर music, dance into the lives of children in remote areas, schools in remote areas. So they're reaching out to our little young children. And ये privilege actually मेरे को जो कमाल का इसमें और लगता है, of course ऑनलाइन से आप कहीं मतलब there is no boundary, आप कहीं भी reach out कर सकते हैं। जैसे when I realized कि actually हाँ ये हो सकता है, उज़्बेकिस्तान में कोई बेटी है वो भरतनाट्यम अभी सीख रही है रूट्स टू रूट्स के द्वारा, उनके प्रोग्राम के द्वारा। कोई और कज़ाकिस्तान में तबला सीख रहा है। सो यू आर ब्रिंगिंग दिस ब्यूटिफुल कल्चर टू यंग पीपल एंड मास्टर्स, एमिनेंट आर्टिस्ट्स, वो भी क्लासेस देते हैं ऑनलाइन इनके साथ। एंड दैट एजुकेशन, दैट सीख विच यू गेट, हमारे बड़े बड़े स्कूल्स यहाँ पर जो होते हैं उन्हें भी नहीं मिलता ये प्रिविलेज। सो इट्स वंडरफुल। आई मीन आई होप दिस ऑर्गेनाइजेशन grows and grows and
वी ऑल्सो रियलाइज़ कि हम सिर्फ बच्चों को प्रेशराइज एकेडमिक्स में ना करें, उन्हें जो दिल करता है वो करें, स्पोर्ट्स हो, आर्ट हो, कल्चर हो, प्लीज़ बच्चों को करने दीजिए, खूबसूरत बच्चे बनेंगे और शांत मन हो जाए। मैम पहले के दौर में इसमें इतना स्कोप नहीं था, इतने लोगों को प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते थे, वो दौर और ये दौर में काफ़ी चेंजेस आए। इस चेंजेस को आप किस तरीके से? वही, आई थिंक दिस इज़ अ हिस्टोरिक मोमेंट, 1 फॉर रूट्स टू रूट्स एंड 2 फॉर NSE, क्योंकि ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज ही जो उन्होंने शुरू किया है, आई थिंक ये उसकी शुरुआत है। सो more NGOs, more NPOs can come forward and they can expand their work. Or NGOs, NPOs, as we know, they do something which is good for society. तो वो काम, उससे फंडिंग मिले, उससे मसल मिले कि वो जाके और बड़ा काम कर सके। इससे आई थिंक इट विल एनरिच आवर नेशन। मैम अगर IPL की बात करूँ तो IPL पे आ गए आप? यस, तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड दिस ईयर? काफ़ी अच्छा खेल रही है टीम और आज भी मैच है, इसकी प्रार्थना भगवान के पास हम कर रहे हैं। एक तो IPL इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग फॉर एवरीबडी। हम सब बैठ के TV देख रहे होते हैं कि आज क्या होगा मैच में, दिल धड़कता है जब अपनी टीम को देखते हैं खेलते हुए। प्रार्थना करते हैं एंड वी होप दैट वी डू वेरी वेल, कि क्या इस साल चैम्पियन बन जाए इसकी। मैं आपसे भी कहूँगी भाई, अगर आप थोड़ी सी भगवान से ऐसे बोल दें ज़रा कि उनको आशीर्वाद दे दो। आज जीत गए तो टेबल टॉपर होंगी। अरे वाह, वही नहीं, वो हमको एंड तक जाना है, तो वहाँ पर एंड पे टॉप पे हो तो कमाल हो जाए। एंड ऑफ कोर्स IPL इज़ वेरी एक्साइटिंग। बहुत सारी टीम्स हैं जिनके बेहतरीन प्लेयर्स हैं, बेहतरीन। आई मीन वी सॉ हैदराबाद में 277, मतलब वो स्कोर देख के तो मैं लाइक हम इसको कब बीट कर सकते हैं? इट्स एन मतलब माइंड बॉगलिंग भी। सो यस, अब आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। रूट्स एंड लूप्स का आप लोग ने जो इन्वेस्टिंग किया है सोशल एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में, ये कितना इम्पोर्टेंट था और ये कितना अलग है और कितनी ज़रूरी चीज़ है, ये आप लोग जानना चाहूँगा। यू आर द फाउंडर्स, 20 ईयर्स हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जो NGOs थे इंडिया में भी, वर्ल्ड वाइड भी, उनका जो सोर्स ऑफ फंडिंग था वो डोनेशन होती थी या CSR फंडिंग जो इंडिया में जो कुछ साल पहले शुरू हुई वो होती है। अब उसके अंदर सबको एक इशू होता था कि हम जो फंडिंग कर रहे हैं इसकी यूटिलाइजेशन क्या होगी, क्या फंडिंग जो जा रही है वो सही जगह जा रही है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। अब जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में बनी है इसमें ट्रांसपेरेंसी ये आ जाएगी कि जो भी फंडिंग आप रेज कर रहे हैं उस फंडिंग को रेज करने के अंदर आपको जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पारदर्शिता दिखानी होती है, जो उसकी ट्रांसपेरेंसी दिखानी होती है कि आप वो पैसा कितना ले रहे हैं, किस किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं और उसका कैसे कैसे इम्पैक्ट आ रहा है, वो हमें उसको पीरियडिकली दिखाना पड़ता है और साथ ही साथ इन्वेस्टर को भी दिखाना पड़ता है। तो उसके अंदर जो ये शक और शुबे की बात होती थी कि पैसा मिसयूटिलाइज तो नहीं हो रहा, वो एक चीज़ खत्म हुई। और दूसरा इससे फायदा क्या हुआ, जो इंडिया की कैपिटल मार्केट है उसके अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और NGOs को एंट्री दी। ये एक एरिया अभी तक ऐसा था कि स्टॉक मार्केट के अंदर लोग सिर्फ पैसा लगा के उसको ग्रो करना चाहते हैं। अब ये एक ऐसा एरिया मिल गया कि सोशली भी लेकिन इन्वेस्ट मनी और उस पैसे को इन्वेस्ट करके उसका इम्पैक्ट और वो सही जगह गया उसको देख पाते हैं। और NGOs का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ उनको एक और सोर्स ऑफ फंडिंग, और NGO को एक और जो NGO अच्छा काम कर रही है, ट्रांसपेरेंटली काम कर रही है, फंड यूटिलाइजेशन सही कर रही है, उनको एक सोर्स मिल गया जहाँ से फंडिंग रेज कर सके। ये मैम उसने काफ़ी राइटली काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। 20 साल हो चुके हैं इस NGO को, कल्चर आर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित है, इंडिया में प्रभाव करती है। बहुत से स्कूलों तक फ्री में आप लोग ये चीज़ें पहुँचाते हैं। हम जानना चाहते हैं किस तरह से ये प्रोसेस स्टार्ट किया आप लोगों ने और किस तरह से आगे बढ़ेंगे। हमारा प्रोसेस जो है एक्चुअली रूट्स टू रूट्स का मतलब ही यही है, रास्ते अपनी जगह। हम चाहते हैं कि हम लोगों को अपने रूट्स के साथ अपनी जगह से मिलाएं, और इसके लिए हमारा एक सफ़र जो है जॉइंट
पॉसिबल डिजिटली हमने सोचा ताकि जो बच्चा रिमोटेस्ट एरिया में बैठा हुआ है हिंदुस्तान में उसको जो है एक लेजेंड से फेमस आर्टिस्ट से सीखने को मिले। इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है। और इसमें कोई चार्ज ना स्कूल को ना बच्चों को, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो कि शुड बी जस्ट फ्री कम से वहाँ से हमारे साथ। मैं ये चाहता हूँ आज का फिल्म चावला मैम आए, सुनील सेन आए, एहसान जी आए, कई सारे एक्टर्स अलग अलग फील्ड के भारतीय लोग आए। इनका क्या प्रभाव रहेगा इस एनजीओ से जुड़कर, या वो किस तरह से काम करते हैं आपके साथ मिलकर? शुरू से हमारे साथ जुड़े, अच्छा, क्योंकि इन्होंने भी ये फील किया कि हिंदुस्तानी कल्चर जो डाइन आर्ट हो रहा है इसको क्यों ना हम बच्चों में एक सीख हो जाए, आर्ट एप्रिसिएशन उनकी हो। तो इसलिए हमारे साथ न सिर्फ जुड़े महाराज और बहुत सारे लेजेंड्स हैं अपनी डिफरेंट फील्ड्स के लेजेंड्स हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं ताकि वो ये लेजेंड हिंदुस्तानी कल्चर और बच्चों तक पहुँचा सकें। तो वो इससे बहुत फील करते हैं कि ये ऐसा काम है और वो भी फ्री में हो रहे हैं उनकी बहुत होलिस्टिक ग्रोथ के लिए। तो कितने स्कूलों तक आपका ये चलता है ये प्रोग्राम जो आपने स्टार्ट किया? कुछ तो नाम जो विरसा है 2016 में हमने 50 स्कूलों के साथ शुरू किया और आज more than 22,000 schools all over India, the remotest of districts हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कुछ अपने प्रोजेक्ट्स आपके इस एनजीओ के थ्रू आ सकते हैं या आने वाले हैं, अगर बता सके जनता को? अभी हमने नया काम जो शुरू किया है, हमने स्कूलों के अंदर इंटरैक्टिव पैनल लगाने शुरू किए हैं जिससे अंदर एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। स्पेशली इन द रिमोट एरियाज टूल्स फॉर एजुकेशन बहुत कम है, तो हम जो रिमोट एरियाज हैं, जो ट्राइबल स्कूल्स हैं, जो दूर दराज के स्कूल्स हैं, उनके अंदर हम IFD पैनल्स लगा के उनको अंदर आर्ट एंड कल्चर की एप्लीकेशंस डालते हैं और साथ ही साथ जो एकेडमिक एजुकेशन है उसको भी उनको करके जिससे क्वालिटी एजुकेशन को ले सकें। ये हमने मुहिम उठाया है इस साल से, और जो ये फंडिंग भी ली है उसको भी इसी स्कूल्स को अपडेट करने के लिए हिमाचल और उत्तराखंड के लिए ये फंडिंग इसलिए उसी मुहिम के दौरान ये भी काम साथ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, धन्यवाद।